Yeah, I think we'll move on to the second half of our seminar today. Hi, Kabir. Hi Divya. Hi everyone. So I'll just quickly introduce Kabir to those who I'm pretty sure everybody knows Kabir Achure, but I'll just introduce him. Kabir has been racing he started with Deccan Cliffhanger about 5 years back. And his first attempt, he was about 30 minutes beyond the RQ time. And after that, Kabir has gone on to win uh, each of these races at different times. The Deccan Cliffhanger last year, the Ultra Spice 1200 and 1000K, and twice the winner of the Great Himalayan. And Kabir has finished RAM 2019 solo. So he's one of the few people who've done RAM solo from India. The youngest and the fastest also, I think, Kabir? No, the youngest one. The youngest. Oh, Yeah. fastest भी ना India से? No, नहीं? Your timing was no. आज 11 days, 22 hours, 43 minutes. okay. Yeah. So maybe 4 hours slower. Okay, okay, Yeah. cool. Yeah. Okay, so I'm So, going to pass on yes, to Kabir and mute myself. thank you. So, the first thing is to know your base mileage about before attempting these races. So, the most most mistake most of the people do is they don't have that much of base mileage. Okay, so एक limit होता है एक race करने के लिए. You have to know the distance of the race. I'll talk about solo attempt first, and then if I could cover the team also, then I'll cover it. But team में इतना कुछ difference नहीं आएगा, because team में we have multiple riders who can shift the rider, or they can change the rider at multiple times. So it won't be that harder as a training wise, but solo में काफी ज़्यादा hard होता है. So base mileage is what if you are going to attempt Deccan Cliffhanger. It is around 650 kilometers ka race. So you can't go there just after riding 100-kilometer maximum. Okay, there must be few triathletes who will be attempting the Deccan Cliffhanger, and the distance for the full triathlon is 180 kilometers. Maybe you are super fast in 180 kilometer, but your body will react differently after 180 kilometer. And to know that, you have to ride longer duration. So अगर 600 किलोमीटर 650 किलोमीटर का राइड है, then you have to have 400 or 500 or maybe 600 के ऊपर का राइड. तो आपको डेक्कन क्लिफहैंगर will be easier to do it, क्योंकि आपको पता होगा कि क्या डिस्टेंस है एंड हमारा बॉडी कैसे रिएक्ट करता है वो डिस्टेंस पे. सो किसी ने 650 चला है तो ही नोज कि उसको कब नींद आती है, कब क्या है. देन अभी भी 6 महीना बाकी है डेक्कन के लिए. इफ यू हैवंट डन अ राइड विच इज मोर देन 24 आवर्स, गो फॉर इट. मतलब जब भी प्लान कर सकते हो करो, बट यू नीड दैट 1 or 2 लॉन्गेस्ट राइड्स विच यू कैन डू इट. देन आपको काफी चीजें क्लियरली पता चलेंगे कि कहाँ पे क्या गलती होता है क्या नहीं होता है. ओके, सो पहले 200 किलोमीटर में जैसा बॉडी रिएक्ट करेगा वैसे ही बाद में 200 में नहीं करेगा. सो गो फॉर दोज राइड्स. दैट इज द फर्स्ट basic step of the endurance rides. Then second is to know your speed. Okay, so 100 kilometers mein, if some rider goes for 20 kmph maximum or 25 kmph maximum, it is very difficult for him to finish the Deccan Cliffhanger in 32 hours. क्योंकि अगर आपका वहीं पे 20 kmph का स्पीड आता है, देन आपको विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग और विदाउट डूइंग इट प्रॉपरली आप वो नहीं खत्म कर पाओगे 32 आवर्स में. सो आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज योर मैक्सिमम स्पीड फॉर लॉन्गेस्ट राइड्स. मतलब इफ समवन राइड्स एट 30 kmph फॉर 100 किलोमीटर, he can't do 30 kilometer for
50 किलोमीटर्स, उसका स्पीड डाउन होगा ही होगा. देन यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली कि हमारा पेस क्या है, हमारा लॉन्गेस्ट राइड कितना है, एंड हमारा स्ट्रेटेजी क्या रहेगा. इफ यू राइड 25 kmph फॉर 200 किलोमीटर, आपको उसी तरीके से प्लान बनाना पड़ेगा कि हाँ, विल कीप 22 kmph का टारगेट, एंड उसमें हमें ऑफ सैडल कम जाना पड़ेगा. डोंट कीप सम अनरियलिस्टिक टारगेट्स, लाइक जाके मैं 26 घंटे में खत्म कर दूंगा या 25 घंटे में खत्म कर दूंगा या मैं रिकॉर्ड ही ब्रेक करके आ जाऊंगा. सो दीज ऑल आर टाइम ट्रायल इवेंट्स which means race against the मोटिव से वहां पे आपको सिर्फ आपका बेस्ट अटेम्प्ट देना है. आपको किसी राइडर को नहीं देखना है. सिंपल वे, पुट योर हेड डाउन एंड पेस एंड राइड. आपको किसी को नहीं देखना है कि कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे है. आप एक प्लान बनाओ, उस प्लान के हिसाब से यू हैव टू राइड. सो दैट शुड बी योर राइडिंग स्ट्रेटेजी. The next point will be how many hours do you train per week. Okay, there should be a tight plan about your training. Just don't go for it कि हाँ चलो जाते हैं, करते हैं, डीसी है, गोवा में फिनिश होगा, देन वहां पे छुट्टियां मना के आ जाएंगे. नॉट. आपके लिए खुद के लिए एक टाइट प्लान रखो जिसमें आपको पता चलना चाहिए कि हाउ मेनी आवर्स यू हैव ट्रेन्ड, हाउ मेनी किलोमीटर्स यू हैव कंप्लीटेड, ये वीक का रिजल्ट कैसा था, उसके बाद नेक्स्ट वीक क्या ग्रोथ है, देन नेक्स्ट मंथ में क्या ग्रोथ आ रहा है, उसके बाद क्या डिफिकल्टीज आ रही है, कौन से बॉडी, whether you are good in climbing, whether you are good in flat roads. वो आपको एक टाइट प्लान बनाना पड़ेगा कि आपका कितना आवर्स का है. फॉर मी I'll suggest कि minimum 6 to 10 hours का ट्रेनिंग is must weekly for Deccan Cliffhanger. In that you have to split it into interval training, endurance rides. वीक में एक राइड आपको चाहिए which will last for 3 to 6 hours, क्योंकि उससे आपका एंडोरेंस बेस बढ़ेगा. सिर्फ जाके चला के आए हैं उसमें नहीं चलेगा, उसमें आपको हिल पे ट्रेनिंग करना पड़ेगा. डेक्कन क्लिफहैंगर इज गुड इन एलिवेशन, मतलब काफी ज्यादा एलिवेशन है इसमें. सो सिर्फ फ्लैट पे चला के कुछ सेंस नहीं बनता है. आपको वो क्लाइम्स का भी टेस्ट चाहिए कि क्लाइम्स में बॉडी कैसे रिएक्ट करता है. फ्लैट्स पे कोई भी फास्ट चला लेगा, फ्लैट पे दूध वाला भैया भी फास्ट चला लेगा, बट आपको क्लाइम्स पे कैसे जाएगा. क्लाइम्स पे सफर नहीं करना है, क्योंकि क्लाइम पे अगर आप स्लो होते हो देन योर राइड विल गो फॉर अ टॉस. अगर आपने फ्लैट्स पे कितना भी ज्यादा जोर से चला है तो भी फ्लैट क्लाइम पे आपका टाइम लूज होगा ही होगा. सो आपको क्लाइम्स पे काफी ज्यादा वर्क करना पड़ेगा अगर आप क्लाइम्स पे ज्यादा अच्छे राइड नहीं करते हो तो. उसके बाद आएगा आपका इक्विपमेंट क्या है. देन बिफोर गोइंग फॉर एनी ट्रेनिंग, जस्ट डू सम रिसर्च कि ये किस काइंड का रेस है, वेदर फ्लैट ज्यादा है, क्लाइंबिंग ज्यादा है, हमें क्या करना है. मैंने बहुत सारे राइडर्स देखे हैं जो डेक्कन क्लिफहैंगर में सामने एंड पीछे बड़े बड़े पाउचेस लगा के आते हैं फूड भर के. जब ये ऑलरेडी सपोर्टेड राइड है, जब आपका क्रू आपके साथ होता है, डोंट मेक योर बाइक हेवियर. आपको क्लाइंब में उससे और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे. लाइट वेट रहो, एकदम लाइट रहो. थोड़ा सा एक आध एनर्जी बार और एनर्जी जेल और एक आध एक्स्ट्रा पानी का बॉटल रखोगे इन इमरजेंसी तो बस है. उसमें आपको पूरा ज्यादा सामान. गो फॉर एरोबार्स. एरोबार होंगे तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलता है, बिकॉज इन दीज टाइम ट्रायल आपका एरो होना इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज वो ड्रैग नहीं मिल पाता है जो मास स्टार्ट में मिलता है. तो आपको अपने आप विंड भी कट करना है, उसमें आपका एनर्जी बहुत ज्यादा जाएगा. So when you have the aero position, you can see ऊपर लटके हुए बाइक पे एक रॉड दिखेगा मे बी आगे. So वो आपको होता है तो एक हैंडल पोजीशन और ज्यादा मिल जाता है, आप एरो रह पाते हो, which saves you almost 20 to 30% of energy, so you can go longer. So it's a good investment to have a aero bar on your bike. So try to मतलब start researching about your bike कि what you need, मतलब aero bars है, then what saddle you need for the long races and all. So saddle वगैरह के बारे में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, but aero bars, yes, आपको aero bar के साथ अभी ट्रेनिंग स्टार्ट करना is important. Then again ट्रेनिंग के पहले, like राइड के पहले हो या कुछ भी हो, ट्रेनिंग में is most important part is your clothing.
सो बहुत सारे लोग होते हैं कि नया इवेंट है, नए कपड़े खरीद लेंगे, राइड में ज्यादा अच्छा दिखना है। तो शादी नहीं है कि हमको नए कपड़े पहन के जाना है, हमको वही कपड़ा पहनना है जो हमने पहले 10-10 बार पहना हुआ है। हमको पता होना चाहिए कि हम कौन से कपड़े में मैक्सिमम कंफर्टेबल है, बिकॉज वहां पे आपको नॉन स्टॉप 24 घंटा साइकिल चलाना, तो यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन दोज क्लोथ्स। इवन सॉक्स भी वही पहनो जो आपने पहले 15 बार चेक किया हुआ है। तो कोई भी चीजें आपका राइड खराब कर सकती है। मे बी आपका टी शर्ट आपको इची फील होने लग जाए, या सॉक्स आपको टाइट फील होने लग जाए। सो एक लिस्ट बनाओ, अभी से 1-2 महीने से वो ड्राई रन करना चालू करो वो चीजों का, देन आपको काफी फर्क पता चलेगा उसमें। सो थर्ड थिंग इज नो यूर सेल्फ। मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट होता है कि अपना खुद का एबिलिटी देखो। हमको खुद को पता होता है कि हम कितने कैपेबल है। ओके, भले ही आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स आपको बूस्ट करे कि अरे हमारा इतने घंटे में डीसी खत्म हो जाएगा या जो भी है, तो वो नहीं प्रॉपरली होगा। आस्क क्वेश्चन टू योर सेल्फ कि मेरा खुद का कैपेबिलिटी क्या है, वेदर आई विल बी एबल टू फिनिश डेक्कन क्लिफहैंगर इन 24 आवर्स। आपको पता चल जाता है कि हाँ मैं इतना फास्ट चला सकता हूँ या नहीं। सो एक एबिलिटी देखो और उसके हिसाब से टारगेट्स रखो। अगर आपका मैक्सिमम राइड ही 600 किलोमीटर अगर आपने 40 आवर्स में किया है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू फिनिश डेक्कन क्लिफहैंगर इन 30 आवर्स। सो आपको प्रॉपर रखने पड़ेंगे टारगेट्स की मेगा एबिलिटी क्या है, उसी एबिलिटी से मैं रखूंगा। फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है, बट व्हेन यू मिस योर टारगेट जो आपका मेन प्राइमरी टारगेट है, उसके बाद डीमोरलाइजेशन चालू हो जाता है। आपके क्रू का जो टेम्पो होता है वो थोड़ा लो चला जाता है कि हमने तो सोचा था कि हम 28 घंटे में डेक्कन खत्म कर लेंगे, लेकिन अभी तो नहीं लग रहा है कि हमारा 30 घंटे में भी खत्म होगा। सो ये थोड़ा डिमोरलाइजेशन हो जाता है। इसलिए आपको टारगेट रखना इज इम्पोर्टेंट, वो भी आपके एबिलिटी के हिसाब से। जो आपका फास्टेस्ट राइड है उससे आप 2 घंटे कम रख सकते हो, जो कि पॉसिबल भी होता है, बिकॉज रेस डे पे आपको एक बूस्ट मिल जाता है कि हाँ बाकी पार्टिसिपेंट्स है एंड उस हिसाब से हम चला लेंगे। सो वो आप कर सकते हो। और बाकी किसी को देख के आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि कोई राइडर फास्ट जा रहा है तो हम उसको देख के पेस करेंगे, या उसने हमको ओवरटेक कर लिया तो हम उसको ओवरटेक करेंगे। यहाँ पे हर एक राइडर 1-1 मिनट के बाद निकलेगा। ओके, सो अगर मेरा लास्ट फ्लैग ऑफ है तो मैं फर्स्ट फ्लैग ऑफ के ऑलमोस्ट 50 मिनट्स के बाद निकलूंगा, अगर 50 राइडर्स है तो। जब मैंने उसको ओवरटेक कर लिया, सो ही हैज टू नो कि ये 50 मिनट बाद निकला हुआ है, ताकि इसने ऑलरेडी मेरे को कवर कर लिया, मतलब ही इज 25 किलोमीटर अहेड ऑफ मी। सो उसके साथ रेस करके कोई सेंस नहीं बनता है, उससे आपका एनर्जी खत्म होगा। सो आपको पेस करने के लिए खुद का ही टाइमिंग देखना है, आपको किसी और को देख के पेस नहीं करना है। जस्ट इन्फ्लुएंस मत होना किसी को देख के कि अरे इसने आगे गया। वही बंदे आगे जाएंगे जिन्होंने अच्छा ट्रेनिंग किया है। सो अगर कोई आगे जाता है उसने में भी ज्यादा अच्छा ट्रेनिंग किया होगा। सो उससे डिमोरलाइज मत होना कि नहीं किया है। सो आराम से जाओ, अपना अपना पेस एक ट्राई करो कि हाँ मैं 22 kmph पे ही चलाऊंगा तो 22 kmph पे ही चलाऊंगा। सो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके हार्ट रेट जोन्स। आपको अभी से हार्ट रेट मॉनिटर के साथ अगर बहुत लोग ट्रेनिंग करते तो इट्स गुड। आपको स्ट्रावा में आपके मैक्सिमम हार्ट रेट के हिसाब से व्हेन यू पुट योर एज इन योर स्ट्रावा, इट विल शो यू योर हार्ट रेट जोन्स, कि आपका जोन 1 क्या है, जोन 2 क्या है, जोन 3 क्या है, देन जोन 4 क्या है, एंड एनारोबिक जोन क्या है। तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपके डिफरेंट डिफरेंट जोन्स क्या है। इन दीज रेसेस जब 650 या 1000 या 1200 या 5000 किलोमीटर के जब रेसेस होता है, मैक्सिमम राइड आपका जो करना चाहिए दैट इज इन जोन 2 एंड जोन 3, एंड हार्डली पुश इन जोन 4, बिकॉज जितना आप जोन 4 में चलाओगे उतना आपका बॉडी टायर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। मे बी आपको रेस स्टार्ट होने के बाद लगेगा कि हाँ बहुत ज्यादा अच्छे से फील हो रहा है मुझे, सो आई पुश हार्ड एंड मे बी कवर मोर डिस्टेंस। अभी 32 kmph आ गया तो आई रोड, बट आप जोन 4 में चला गए, इट विल गिव यू अ स्लैप इन द नाइट टाइम। बिकॉज अगर आपने दिन में जोन 4 में ज्यादा ड्रेन किया, आप रात में 2 बजे के बाद ऑफकोर्स सोने वाले हो। सो बेटर है कि फास्ट चला के 4 घंटा सोने से अच्छा है कि कंफर्टेबल जोन में चलाओ एंड बिना सोए खत्म करो। सो दैट विल मेक ह्यूज डिफरेंस। सो उतना फास्ट चला चला के कोई नहीं, सब लोग थकेंगे। इवन अगर मैंने भी रैम किया है 20 घंटे के बाद मेरी भी बॉडी थकने वाली है, बट आपको वो पेस करना पड़ेगा वो स्मार्टली।
सो हार्डली चलाने से अच्छा स्मार्टली चलाना एनीवेज ज्यादा आपको रिजल्ट देगा। सो ज्यादा हरास मत करो खुद को, ऐसे पेस में चलाओ जब आप चलाते चलाते कंफर्टेबली बात कर सकते हो, वो आपका सबसे कंफर्टेबल पेस है। स्टार्ट में आपका हार्ट रेट ऑफकोर्स बूस्ट करेगा, बट बाद में वो एक बार सेटल हो गया देन वो सेटल हो जाएगा। बट आपको कभी भी ऐसे जोन में नहीं चला हो या आपको बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा है, आपको एक कंफर्टेबल पेस पकड़ना है, आपको उसी तरीके से चलाना है। सो अभी से अपने राइड्स एनालाइज करना स्टार्ट करो कि अगर मैंने इतना चलाया था तो मेरा कितना टाइम जोन 2 में था, कितना टाइम जोन 3 में था, और वैसे आपको फिर पेस करना पड़ेगा एंड उसी हिसाब से आपका फिर कंफर्टेबली वो खत्म हो जाएगा। आपको और एक इम्पोर्टेंट चीज देखनी पड़ेगी अभी से लेकर 6 महीने में कि आप कब से ज्यादा मैक्सिमम स्लीपी फील करते हो दिन के टाइम में। दोपहर है या रात में 2 बजे है या कभी कभी रात में 8 बजे होता है, सबको अलग अलग टाइम होता है। इन माई केस आई फील स्लीपी इन आफ्टरनून टाइम, मतलब 3 से बजे के 5 के बीच में मेरे को बहुत ज्यादा नींद आती है। सो ट्राई करना अगर पॉसिबल है तो मैक्सिमम टाइम आप ट्रेनिंग का वही टाइम में राइड करना ट्राई करो। लाइक अगर किसी को रात में 2 से 4 के बजे में नींद आती है तो ट्राई करो कि एटलीस्ट 6-7 बार उस टाइम जोन में आप राइड कर लो, ताकि आपको पता चलेगा कि हाँ ये टाइम पे मेरे को नींद आया था, बट मेंटली आपको ये भी पता है कि हाँ इस टाइम में मैंने ट्रेनिंग भी की है। सो आपका एक मसल मेमोरी जो होता है वो टाइम पे अच्छे से रिएक्ट करेगा कि हाँ हमने चला लिया है। सो चल जाता है। तो आपको जोन देखने पड़ेंगे कि आपको कब सबसे ज्यादा नींद आती है। वो इसलिए नींद आती है बिकॉज आपका बॉडी वो टाइम पे बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड होता है। सो आपको वो एक थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा कि हाँ मैं ये टाइम पे भी राइड कर सकता हूँ जो भी है। सो आपको वो देखना पड़ेगा। आई कैन सी कविता मैम अभी यॉन कर रही थी तो उनको नींद आना चालू हो जाता होगा 9 बजे के बाद। सो आपको ट्राई करना पड़ेगा कि जब नींद आती है तब आपको वही टाइम पे चलाना है। सो उस टाइम से आपको इजीली ये पता चलेगा। द मेन रूल फॉर अल्ट्रा एंडोरेंस इज डोंट गो टू हार्ड टू अर्ली। सो अगर स्टार्ट होते ही रेस का माहौल होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे रेसर्स होता है, सो अपना ट्रेनिंग बहुत सारा हो चुका होता है जितना होना होता है, हमको पता है कि हमने कितना ट्रेन किया है, हम लोग कितने टाइम में खत्म कर सकते हैं, हमारे पास स्ट्रेटेजी भी होता है, हमारे पास प्लान भी होता है। बट 90% राइडर्स इस प्लान से भटक जाते हैं फर्स्ट हाफ में ही, क्योंकि काफी लोग आगे पीछे होते रहते हैं। तो लोग सोचते हैं कि सब लोग फास्ट जा रहे हैं, हम भी फास्ट चलेंगे। मैंने इतने 2-3 बार जब भी मैंने डीसी के इंस्पेक्शन के टाइम पे किसी भी राइडर ने मेरे से पूछा था कि क्या स्ट्रेटेजी रखना है, कैसे चलाना है, आई ऑलवेज टेल देम कि मेन डेक्कन क्लिफहैंगर स्टार्ट होगा आफ्टर निपानी, ओके, विच इज 350 किलोमीटर अराउंड। निपानी के बाद मेन रेस स्टार्ट होगा, क्योंकि निपानी के बाद रात में चलाना इज डिफिकल्ट। बट उसमें से काफी हार्डली कोई राइडर सुनता है कि मैंने क्या बताया था। उसके बाद वो स्टार्ट से पुश करना स्टार्ट कर देंगे, कोल्हापुर तक इतना ड्रेन हो जाएंगे कि उनको पता नहीं होता है कि बाद में रात में क्या करना है, एंड वो रात में 3-3 4-4 घंटा सोना स्टार्ट करेंगे। तो ट्राई करना कि हमेशा निगेटिव स्प्लिट्स में चलाओ। अगर आपको कोई रूट पता है कि ये रूट कैसा है तो आप ऑल आउट जा सकते हो। सपोज आपका कोई ट्रेनिंग रूट है, आपको पूरा ऑल एंड आउट पता है कि इन एंड आउट पता है वो रूट की कैसा है, यहाँ से लोनावाला एंड बैक है, मेरे को ईच एंड एवरी शॉप मेरे को पता है कि कहाँ पे कौन सा शॉप है, तब आप ऑल आउट जा सकते हो क्योंकि आपको पता है कि वो रास्ता कैसा है। बट आप फर्स्ट टाइम डेक्कन कर रहे हो, आपने वहां पे साइकिल नहीं चलाया है, आपको नहीं पता है कि सेकेंड हाफ में आपका बॉडी कैसे रिएक्ट करेगा। इट्स बेटर टू राइड स्लोली इन योर फर्स्ट हाफ कंफर्टेबली, क्योंकि आपको बॉडी में रिजर्व रखना है कि क्या फ्यूल है। आप 1-2 दिन, आप 4 दिन पहले से कार्ब लोडिंग स्टार्ट कर दोगे, कार्ब लोडिंग की वजह से आपकी बॉडी में ऑलरेडी ग्लाइकोजन काफी हाई होगा, सो आप में एनर्जी बहुत अच्छा फील होगा। रेस स्टार्ट होता है तो हम लोग ऑलरेडी एकदम सुपर फास्ट होते हैं तो हम लोग पहले चला लेंगे। पहले 8-10 घंटे तक बॉडी के जो स्टोर्स है वो का आपको बहुत ज्यादा स्पीड देंगे। मे बी हम रेस के ज्यादा वो एंथू में काफी कैलोरीज इनटेक करना भी निग्लेक्ट कर देते कि हाँ फील होगा अच्छे से। बट आफ्टर 10 आवर जब आपका वो स्टोरेज खत्म हो जाता है, जब आपके मसल्स टायर्ड होने लग जाता है, उसके बाद सर्वाइव करना डिफिकल्ट है। आधे रेस तक अगर आप देखते हो, अगर आप उसी माइंडसेट से आए हो कि मेरे को रेस करना है, मेरे को देखना है कि मेरे को पोडियम लाना है, बट आपको देखना पड़ेगा कि
पहले जो 12 घंटे में जो सारा स्टैट्स रहेगा कि फर्स्ट नंबर में ये है, सेकंड में वो है, फोर्थ में ये, फिफ्थ में ये है, वही सेम नहीं रहेगा सेकंड 12 आवर्स में। वही पोडियम में फिनिश करेंगे जो सबसे ज्यादा स्मार्टली चला रहे हैं, या वही लोग खत्म करेंगे सक्सेसफुली जो स्मार्टली पेस कर रहे हैं। सो डोंट गो टू हार्ड इन अर्ली। सो 10 घंटे तक ऑब्जर्व करो रेस कैसा चल रहा है, बॉडी कैसे रिदम दे रही है। ऐसे भी नहीं कि बहुत स्लो, की कबीर ने बोला था पहले नेगेटिव स्प्लिट्स में स्लो चलाना है तो 15 और 20 kmph से चलाने लग जाए। अगर आप 30-32 से चलाते हो, सो बेटर कि 28-29 से चलाओ। अगर आप 25-26 का एवरेज कर सकते हो तो इट्स बिग नो टू राइड एट 30 और 32 kmph फॉर द फर्स्ट हाफ। एक बार पहला हाफ हो गया रेस का, then in next half if your body feels fresh and all, it will feel fresh because पहले आपने ज्यादा खुद को हरास नहीं किया है। so you can push in the second half, मतलब आपको सोना भी नहीं पड़ेगा। so आपको नेगेटिव स्प्लिट्स करना पड़ेगा। then third then our next point is cycling is like credit account। ये सेविंग नहीं है। आपने लास्ट में 2 साल में कितना चलाया है एंड आपका कितना माइलेज है, उसके बेसिस पे आप ये रेसेस नहीं कर सकते हो। आपको करंटली आपका क्या बेस है, आपने करंटली कितना ट्रेनिंग किया है, उस हिसाब से आपको राइड करना पड़ेगा। क्योंकि आप जितना अच्छे से अभी ट्रेंड हो उतना अच्छे से चला पाओगे। आपने पहले भले ही 4-5 हजार किलोमीटर चलाया होगा, बट आपका 2 महीने से गैप है तो फिर वो मैटर नहीं करता। तो फोकस करो कि अभी से आपको ट्रेनिंग में रहना पड़ेगा। इसमें अभी फेज आएंगे। अभी 6 मंथ्स है डेक्कन आने के लिए, तो अभी से आपको एकदम हार्ड ट्रेनिंग करने का कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट 2 मंथ्स आप सिर्फ एंडोरेंस के लिए रखो। लाइक यू नीड माइलेज इन योर लेग्स। मतलब आप वीक में अगर 12 घंटे चला गए, स्लो राइड चलेगा, बट आपको माइलेज चाहिए आपके वो अकाउंट में कि हाँ मैंने 2 महीने में लाइक 2000 किलोमीटर किया है, 3000 किलोमीटर किया है, जितना भी आपके टाइम के हिसाब से। देन नेक्स्ट 2 मंथ्स में या 3 मंथ्स में आपका इंटेंसिटी बढ़ेगा। उसमें आपका जो टाइम होगा वो ज्यादा लंबा नहीं होगा, बट आपका इंटेंसिटी लेवल ज्यादा आएगा। उसमें आपको स्पेसिफिकली स्पीड वर्क करना पड़ेगा कि हाँ हमको अभी स्पीड बढ़ाना है या हमको हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करना है। उसमें आप हिल रिपीट्स ले लो, फाइंड अ गुड हिल नियर बाय योर हाउस जो 1 से 2 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच हो और ग्रेजुअल क्लाइंब हो, और उसके ऊपर आपको लूप्स करने की, आप जा रहे हो देन नीचे आ रहे हो जो भी है। एंड ये ऐसे हिल रिपीट्स भी अगर करने हैं तो आपको ओवरडू नहीं करना है कि 10-10 हिल रिपीट्स कर लिया, कुछ भी कर लिया। 1.5 घंटे से 2 घंटे का ट्रेनिंग इज मोर देन इनफ। सो आपको रिकवरी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप आपके बॉडी को हैरेस कर रहे हो अभी। सो आपको उतना रिकवरी के लिए भी टाइम देना है। अगर कोई दिन आपको लग रहा है कि नहीं आज मेरे को ट्रेनिंग करने का मन नहीं है, टेक ऑफ। सो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने किसी दिन छुट्टी ले ली ट्रेनिंग से तो कोई प्रॉब्लम होगा। सो उसी तरीके से आपको अलग अलग प्लान बनाने पड़ेंगे कि एक दिन पे हमने फ्लैट रोड पे ट्रेनिंग कर लिया, कभी हमने हिल रिपीट्स कर लिए, कभी हमने रोलिंग टेरेन पे जाके ट्रेनिंग कर लिया। सो आपको वो प्रॉपरली देखना पड़ेगा, खुद चार्ट बनाना पड़ेगा कि आज मैं ये करूंगा, कल वो करूंगा। तो उस हिसाब से आपको प्लान करके चलना पड़ेगा। देन सिर्फ ट्रेनिंग करके ही सेंस नहीं बनेगा। आपको ट्रेनिंग करने के बाद उतना ही ध्यान स्ट्रेचिंग के ऊपर भी देना पड़ेगा। ट्रेनिंग इज ओनली 30% ऑफ टोटल। ये जो भी है, उसके बाद आपका डाइट आएगा, आपका स्ट्रेचिंग आएगा, अपने बॉडी को किस तरीके से नरिश किया वो आएगा, जो आपका लैक्टिक एसिड जो फॉर्म हुआ है मसल्स में वो रिलीज करना इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको स्ट्रेचिंग टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। अगर आपको कोई अभी से फिजिकल इश्यूज आ गए, किसी को एंकल पेन है, किसी को शोल्डर पेन है, अभी से सॉर्ट आउट करना ट्राई करो। ऐसे मत सोचो कि ये यूज टू होने के बाद कम हो जाएगा। किसी को, मैक्सिमम लोगों को शोल्डर पेन आता है तो उनको लगता है कि अरे नहीं हमको आदत नहीं है, तो बाद में जैसे जैसे लंबा राइड्स होना स्टार्ट हो जाएगा इट विल गो, बट वो नहीं जाएगा। इट्स गुड टू सी सम फिजियो और सम बाइक मैकेनिक और सम बाइक फिटर जो आपका बाइक फिट प्रॉपरली करे। सो ये सारे इश्यूज नहीं होंगे। बिकॉज अगर आपको लगता है कि आप 600 किलोमीटर चलाओगे और आपके बॉडी में पेन होगा ही होगा, सो दैट इज रॉन्ग। आपके बॉडी में बिल्कुल पेन नहीं होना चाहिए। सोरनेस यस चलेगा, अगर आपको मसल सोर फील होगा दैट इज नॉर्मल, बट आपको शोल्डर पेन होगा, आपको लोअर बैक पेन होगा, तो कहीं ना कहीं आपका बॉडी लैक कर रहा है वो फिटनेस के लिए। सो आपको वो अभी से ट्राई करना पड़ेगा सॉर्ट आउट करने के लिए। बिकॉज अभी 6 महीना है, अभी तक आप
सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो 2 महीने पहले तक, बट लास्ट के 2 महीने में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा. एंड डूइंग दीज काइंड ऑफ लॉन्ग रेसेस इज सेम लाइक रनिंग अ कंपनी. मतलब आपको एक कंपनी फॉर्म करना है, उसमें एम्प्लॉयज लाने हैं, आपको मशीनरी बिठानी है, देन आपको रिटर्न्स आना स्टार्ट होगा मे बी 6-7 महीने के बाद. अभी आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम है, उसका रिटर्न्स आपको 6 महीने के बाद मिलेगा. सो अभी स्मार्टली इन्वेस्ट करो ताकि आपको बाद में जाके अच्छे रिटर्न्स मिले उसमें से. अभी से अच्छा क्रू, तो दिव्या मैम ने बताई है कि क्रू का जो भी होगा, सो अभी से ये स्टार्ट करो कि आपको क्रू चाहिए, आपको बाइक्स कौन सी चाहिए, आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं बाइक में. दिस इज द टाइम. आपको देखते देखते पता नहीं चलेगा कि डेक्कन का स्टार्ट लाइन का टाइम कब आ जाएगा. सो लगेगा कि 6 महीना, बट इट विल गो लाइक दिस कि आपको पता नहीं चलेगा. सो वो आपको फिर से करना पड़ेगा. बहुत लोगों ने कोट देखा होगा कि शट अप लेग्स एंड ऑल. We don't say that in ultra endurance, shut up legs and all. It's most of the time it's from mind. Okay, so जब भी आपको लगता है कि बॉडी में कहीं पे पेन है, रुको, एनालाइज करो खुद को कि क्या हो रहा है. मेरे को ये आज ट्रेनिंग सेशन करना इतना इंपॉर्टेंट है क्या अगर मुझे नी पेन हो रहा है. रेस के टाइम पे अगर आपको कुछ पेन हो रहा है, आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि ये पेन इतना ज्यादा है क्या, ये जाके सीरियस इंजरी बन सकता है आगे. सो आपको वहां पे रुकना पड़ेगा. आपको पता होना चाहिए कि बॉडी आपसे क्या मांग रही है, बॉडी क्या क्या डिमांड है. अगर आप बोलोगे कि नहीं नहीं दर्द होता है तो भी चलेगा, मैं कंप्लीट करूंगा, लेकिन इट विल कॉज यू अ सीरियस एंड परमानेंट इंजरी. डेक्कन क्लिफहैंगर हर साल आएगा, बट ऐसा कुछ इंजरी लेके मत बैठो जिसकी वजह से आप कभी बाद में अटेम्प्ट ना कर सको. सो कभी कभी ऐसा होता है कि 90% ऑफ द टाइम इट्स ऑल अबाउट मेंटल टायर्डनेस. सो अगर लगता है कि नहीं नहीं चलाना है, क्विट करना है, कुछ भी है, तब थोड़ा सा 2 मिनट रुक के, थोड़ा सा पानी पी के सोचो कि कुछ बॉडी में पेन है क्या मेरे. नहीं होगा, ऑफकोर्स नहीं होगा. लगेगा कि थकान है, थकान सबको ही होने वाली है, बट एक दिन का एफर्ट है. देन आपको 1 साल तक उसी चीज को लेके मतलब पता चलेगा कि हमने ऐसा कुछ किया है जो काफी कम लोग कर सकता है. बट अगर वो 10 मिनट के टायर्डनेस की वजह से अगर आप क्विट कर दोगे या कुछ करोगे, मतलब कि हमें नहीं करना है, आप सो गए 4-5 घंटे के लिए अननेसेसरी जब आपको जरूरत नहीं, फिर आपको ये पूरा डिसीजन 1 साल तक रिग्रेट करेगा जब तक नेक्स्ट डेक्कन नहीं आएगा. सो रिग्रेट लेकर बैठने से अच्छा है कि खुद को एनालाइज करो, whether it's mental or it's physical. If it's physical, then don't harass yourself. If it's mental, then उससे ओवरकम करना बहुत इजी है. खुद को देखो कि क्या चाहिए, देन चलाना स्टार्ट करो, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. देन ट्रेनिंग के बारे में अगर हम आते हैं, सो इफ you have some good target like 26 hour or 24 hour or 28 और जो भी है, सो ट्राई करो कि कोई एक्सपर्ट रहे आपके पीछे, लाइक सम कोच और एनीवन. इंडिया में बहुत सारे कोचेस हैं, काफी अच्छे अच्छे कोचेस हैं जिन्होंने काफी अच्छा कुछ किया. मितन ठक्कर है, चैतन्य है, इवन काफी सारे हैं. मैं खुद कोचिंग देता हूँ काफी लोगों को डीसी के लिए. सो ट्राई करो कि कोई एक प्रोफेशनल देखो जो आपको असिस्ट कर पाए, ताकि वो आपको प्रॉपर बता सकता है कि उस चीज में आपको क्या इनपुट डालना है एंड आपको क्या करने के बाद ज्यादा फर्क पता चलेगा. अभी अभी कोई अगर चीजें होती है, अगर मैं कोई एक्सपर्ट से पूछता हूँ तो मेरे को उसके बारे में नया पता चलता है कि हाँ, अगर मैं ये करूंगा तो मे बी मेरे परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है. सो वो देखने के लिए और वो ट्रेनिंग करवाने के लिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, देन यू शुड गो फॉर कोचिंग. इतना कुछ आई डोंट थिंक कि ज्यादा ये पड़ेगा. बट कुछ लोगों का होता है कि सोचते कि ज्यादा इन्वेस्ट करने में क्या फायदा, मतलब नहीं जाते, 3 मंथ का क्यों करना है, खुद के ऊपर ट्रेनिंग करेंगे. बट डेक्कन के लिए आप लोग ऑलरेडी इतना इन्वेस्ट करने ही वाले हो, देन व्हाई नॉट ऑन ट्रेनिंग. सो अगर आप फाइंड कर सकते हो कि हाँ बाबा दिस गाय इज गुड, हम उसके पास थोड़ा सा 3 महीने तक ले लेंगे, इट विल बी योर लाइफ टाइम नॉलेज. मतलब आपको पता चलेगा कि आगे ट्रेनिंग कैसा करना है. सो थिंक अबाउट इट. अगर आपको कुछ अच्छा टारगेट चाहिए, आपको अच्छा करना है, देन यू कैन गो फॉर इट. नो योर रेस रूट. ऐसे ही मत जाओ कि हाँ हम लोग डेक्कन कर रहे हैं, डेक्कन में जाना है ऑल. आपको प्रॉपरली रेस के पहले, लाइक 3 वीक पहले आपको प्रॉपर रूट डिटेल्स आ जाएंगे कि क्या रूट है, कौन सा रूट हम करेंगे, वेदर इट्स फ्रॉम पसरनी और वेदर इट इज
स्ट्रेट टू धारवाड़ एंड रिटर्न फ्रॉम द धारवाड़ एंड बेलगांव से हम जाएंगे। सो आपको ग्राफ देखना पड़ेगा कि एलिवेशन ग्राफ क्या है, कहाँ पे कौन सा बड़ा क्लाइंब है, हमको किस तरीके से पेस करना है उसमें। सो आपको रूट स्टडी करना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सिर्फ चलाना है इस हिसाब से मत जाओ, आपको देखना पड़ेगा कि फ्लैट सेक्शन कौन सा है, हमको वहां पे कैसे चलाना पड़ेगा। लाइक हम फास्ट जा सकते हैं बिकॉज हमको मैक्सिमम टाइम गेन कर सकते हैं उसमें, ताकि हम बाद में स्लो जा पाए। क्लाइंब पे आपको स्ट्रेटेजी करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे इस तरीके से चलाएंगे ताकि, तो आपको रिकवरी करने के लिए, आपका क्रू का प्लानिंग करने के लिए कि आपको कहाँ से खाना उठाना है, कहाँ पे आपको हैंड्स ऑफ दे सकते हो, कहाँ पे हैंड्स ऑफ देना मुश्किल जाएगा, कहाँ पे डाउनहिल है, कहाँ पे डाउनहिल। सो काफी सारे राइडर क्लाइंब स्टार्ट होने के पहले एनर्जी जेल्स ले लेते ताकि उनको क्लाइंबिंग में ज्यादा अच्छे से एनर्जी बूस्ट मिल सके। सो एक राइड का जो ग्राफ होगा रूट का, वो आपको थरली चेक करना पड़ेगा ताकि आप आपका डाइट प्लान भी बना सको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने घंटे के हिसाब से डाइट प्लान बनाया, आप कुछ सॉलिड खा रहे हो और तभी क्लाइंब आ जाए। सो सॉलिड खाने के बाद आपको वो डाइजेस्ट भी करना है, आपको क्लाइंब भी चढ़ाना है, देन वो फिर हेवी फील होना स्टार्ट हो जाएगा। सो बेटर है कि पूरा थगली चेक करो कि रूट कैसा है एंड ऑल, और उसी तरीके से आपको जाना पड़ेगा। देन सिमुलेशन राइड्स, ये आई गेस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सपोर्टेड रेसेस का, जिसमें आप आपके पूरे क्रू को लेके आओगे साथ में, आप उनको अपना ट्रेनिंग प्लान बताओगे, चूज अ सिमिलर रूट। आप अगर डीसी के रूट पे सिमुलेशन राइड कर सकते हो 200 to 300 किलोमीटर, दैट इज मोर देन मतलब इनफ। और वो सबसे ज्यादा अच्छा भी होगा कि आपको एक टेस्ट मिल जाएगा, रॉ टेस्ट की डीसी में चलाना क्या होगा। सो सिमुलेशन के लिए एटलीस्ट अपना 70% या 50% क्रू होना इज मस्ट, जिनको पता होना चाहिए कि राइडिंग के टाइम पे आप कैसे रिएक्ट करते हो, आपको कब क्या चाहिए, आप धूप में कैसे रिएक्ट करते हो, आप नाइट टाइम में कैसे रिएक्ट करते हो। आई सजेस्ट कि मिनिमम 24 घंटे का एक सिमुलेशन राइड होना चाहिए। अगर आपने पहले आपके क्रूज के साथ कभी चलाया नहीं है, आपको काफी चीजें पता चलेंगी कि कौन सा क्रू कैसे रिएक्ट करता है और राइडर भी कैसे रिएक्ट करता है। इमोशनल इससे थिंकिंग से मत जाओ कि यार ये मेरा क्लोज फ्रेंड है, मैं इसको कैसे ना बोलूं। अगर आपको लगता है कि ये बंदा मेरे क्रू में सूट नहीं हो सकता है, ये मेरे काम का नहीं है, उसको बोलो कि नहीं नहीं जमेगा यहाँ पे। और अगर ये बोलने में आपको लगता है कि नहीं क्यों बोलना है, सो लॉस आपका ही होगा, बिकॉज एक क्रू भी अगर आपका गलत निकला, ही कैन स्पॉइल एंटायर एनवायरमेंट ऑफ योर क्रू। सो आपको गलत लोग लेके नहीं चलना है। मे बी वो आपके साथ बहुत अच्छा है बट वो उस जगह पे सूट नहीं हो पाता है। सो आपको देखना पड़ेगा कौन से लोग कहाँ पे ज्यादा अच्छे से सूट होंगे, नाइट टाइम में कौन सूट होगा, डे टाइम में कौन सूट होगा। इसलिए आपको सिमुलेशन राइड करना इज इम्पोर्टेंट। और आपको खुद को भी पता चलेगा कि आप विथ क्रू कैसे चला लेते हो। सो ये ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि 6-7 मैक्सिमम, जितने मैक्सिमम हो सके अपने क्रू के साथ सिमुलेशन राइड्स करो। ब्लाइंडली मत जाओ कि पहले टाइम आप क्रू के साथ चला गए तो वहां पे काफी चीजें आपको पता नहीं चलेंगी। सो ट्रेनिंग में पार्ट रखो कि जो क्रू आपके घर में है तो बेटर है कि उनको लेके सपोर्टेड राइड्स पे जाओ। संडे आप प्लान कर सकते हो या कोई भी और, सारा क्रू लेके आते हो तो दैट विल बी मतलब गोल्डन थिंग कि आप लेके गए हो तो आपको सब कुछ पता है। देन सबसे एंड पार्ट आता है इन रेसेस का टेपरिंग, जो काफी लोग नहीं समझते कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग हार्ड एफर्ट्स दे गए, काफी लोगों को नहीं पता होता है कि ट्रेनिंग कब कम करना है, लाइक आपका इंटेंसिटी कब कम करना है। उनको लगता है कि एक दिन पहले तक भी हम हार्ड चलाएंगे तो मे बी हमको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, बट दैट इज नॉट ट्रू। आपको 10 दिन पहले से इंटेंसिटी कम करके ग्रेजुअली आपको वो बॉडी को रिकवरी में लेके आना पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यूसली 2 महीने से हार्ड एफर्ट्स देगा, आपका बॉडी ऑफकोर्स फटीग में चला जाएगा, मसल्स उतने फ्रेश नहीं होंगे। सो उनको वो फिर से फ्रेश करने के लिए, आपको आपके बेस्ट फॉर्म में आने के लिए लास्ट के 10 दिन ग्रेजुअली आपका इंटेंसिटी कम करना पड़ेगा। आपको लेजर राइड्स करने इंपॉर्टेंट है। आप अगर पहले 6 हिल रिपीट्स करते थे, आपको सिर्फ 2 हिल रिपीट्स करने हैं। सो आपको उस तरीके से रेस डे पे मैक्सिमम फ्रेशनेस फील होना चाहिए, उसमें आपका फॉर्म लूज नहीं होगा। लास्ट 10 दिन में आप चलोगे, एक्चुअली इट विल गिव यू एक्स्ट्रा बूस्ट। आपको भी कभी पता चला होगा, अगर
आप कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग में और 4-5 दिन का गैप होता है, तो आप बहुत ज्यादा अच्छे से चला लेते हो, आपका स्पीड ज्यादा अच्छा आता है, आपको माइलेज अच्छा मिलता है। सो दैट इज बिकॉज आपके मसल्स रिकवर करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि कब इंटेंसिटी कम करना है। सो लास्ट के 10 दिन ट्राई करना कि धीरे धीरे इंटेंसिटी कम करना है। अगर आप पहले 2 घंटे चलाते थे, आपको अभी 1 घंटे पे लेके आना है या 1.5 घंटे पे लेके आना है। सो ग्रेजुअली वो ग्राफ नीचे आना चाहिए, जैसे कूल डाउन हम करते हैं एक्सरसाइज का, उसी तरीके से। और इसके पहले दिन एकदम आराम से 10-15 किलोमीटर का इजी स्पिन, आपका बाइक चेक करने के लिए, आपका इक्विपमेंट चेक करने के लिए। ज्यादा भीड़ भाड़ में मत जाओ, क्योंकि मैक्सिमम आई फील कि जो भी एक्सीडेंट्स वगैरह, गिरने पड़ने के जो सीन होता है, वो इवेंट के काफी पहले पहले होता है। तो खुद को सेफ रखो, ऐसे पैचेस पे चलाओ जहां पे ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। ट्रेनिंग करने के लिए मेंटली स्ट्रांग होने के लिए आई प्रेफर कि एक छोटा सा लूप ढूंढो घर के पास, जो 20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर का ही होगा, जिस लूप में आपको कंटिन्यूअसली काफी घंटों तक अगर चलाओगे आप एंड्योरेंस राइड्स, तो आपको मेंटली भी काफी अच्छे से बूस्ट देगा, ताकि एक बोरियत जो होती है वही रास्ते पे कंटिन्यूअसली चलाना, वो आपको काफी हेल्प करेगा। बहुत सारे लोग होंगे जो ऑफिस जाते हैं, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, दिन भर मतलब थकेंगे, रात में आएंगे, किसी किसी का रात में ट्रेनिंग का टाइम है। सो ऐसे मत सोचो कि आपका ट्रेनिंग प्रॉपरली नहीं होगा। जो लोग दिन भर थकने के बाद रात में अगर इंडोर ट्रेनर पे हो या कहीं पे भी, जहाँ पे भी अगर आप ट्रेनिंग करते हो सेफली, अगर क्रू व्हीकल के साथ जाके रात में ट्रेनिंग करते हो, देन इफ यू कैन गो फॉर इट। ट्राई करो 3-4 वीक तक आप पूरे फुल दिन मतलब काम करने के बाद थके हुए हो, एंड यू गो फॉर 2 आवर और 3 आवर का राइड एंडोरेंस में या कभी भी। क्योंकि रेस जब स्टार्ट होगा, आप फ्रेश सिर्फ पहले 6-7 घंटों तक होंगे, उसके बाद आपको टायर्डनेस फील होगा। बट दिन भर थकने के बाद जो आप ट्रेनिंग करोगे, वो आपको काफी अच्छा गेन देगा, क्योंकि आपको पता है कि आप टायर्ड बॉडी पे भी अच्छे से ट्रेन कर सकते हो, अच्छे से माइलेज ले सकते हो। सो फ्रेश फील करके ट्रेनिंग करने से अच्छा आई प्रेफर कि कभी कभी थके हुए बॉडी पे भी ट्रेनिंग करना इज इम्पोर्टेंट, ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगे जब टायर्ड आप फील करोगे इसमें, और आपको फिर लगेगा कि हाँ, मैंने ऐसे भी ट्रेनिंग किया हुआ है जब मैं ऑलरेडी टायर्ड था। सो ये सारी आपको चीजें करनी पड़ेंगी डेक्कन में। देन अगेन अल्ट्रा स्पाइस में डिस्टेंस ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। अगर यहाँ में से कोई प्लान कर रहा है कि वो अल्ट्रा स्पाइस 1750 करेगा या 1200 करेगा, सो डिस्टेंस डबल और ट्रिपल और एलिवेशन बहुत ही ज्यादा है। सो उस रेस का अलग ही डिमांड है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि डीसी का जो रिक्वायरमेंट है वही अल्ट्रा स्पाइस का भी होगा। सो उसी तरीके से हम ट्रेनिंग करेंगे। आपको वो ट्रेनिंग थोड़ा थोड़ा चेंज भी करना पड़ेगा, आपको और ज्यादा आवर्स पुट इन करने पड़ेंगे ट्रेनिंग के लिए अल्ट्रा स्पाइस में, बिकॉज इट्स अ बिग इवेंट, मतलब 1750 किलोमीटर। देन 5 दिन का टाइम लिमिट है, बहुत ज्यादा एलिवेशन है, टेम्परेचर वेरिएशंस बहुत ज्यादा है। कारवार में इट गोज अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस, एंड ऊटी में अगर आप रात के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग जाते हो तो कभी कभी आपको 2-3 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर मिलता है। देन अगर मल्टीपल डे का इवेंट है, इसलिए आपको नींद पे कंट्रोल होना इज इम्पोर्टेंट। आपको वो ट्राई करके देखना पड़ेगा कि हम 1-2 घंटे के नींद पे भी कैसे वर्क कर सकते हैं। मे बी कभी कभी आप लॉन्ग राइड्स कर सकते हो, बैक टू बैक 3-4 डेज रोज 200-200 किलोमीटर चला के आपको देखना पड़ेगा कि आपका बॉडी कैसे रिएक्ट करता है। सो उस तरीके से आपको खुद को ट्रेन पर करना पड़ेगा। सो ये सारे वेरिएशंस आएंगे, एंड लेट्स सी कि कौन कैसे कितना प्रॉपर्ली ट्रेन करता है। एंड देन अगर कोई क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क मी, मतलब और भी कुछ कवर हो सके। या रवि, Good evening. yeah, good Hi. evening. Just Hi, Hello. sorry to interrupt. One Sorry second. sorry to interrupt. Kabir, Yeah. any insights on training separately for Himalayan in this situation, or that'll all come later? No, no. So I can cover it now, but I feel कि अभी yeah, I can cover it now actually. जिनको अगर कोई plan होगा जाने का, so they can go for it. Since Like it's the self-supported first भी जो race, है. since it's the first Correct, race on correct, the correct, correct, calendar, correct, so correct, correct, correct. हाँ. So the Himalayan, okay. So I feel this is the most toughest race of not only Inspire India, maybe world's toughest race in that 600 kilometer का category.
सो 2 बार ही ऐसा हुआ है व्हेन आई फेल्ट कि मेरे को साइकिलिंग नहीं करना है, एंड दैट इज बोथ इन हिमालयन. सो हिमालयन में एनीवेज एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा हाई है. सो जो यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे मेरा जोन 2 है, वो ऑलरेडी वहां पे जोन 3, वहां पे ऑक्सीजन एक तो थिन है, एयर थिन है, तो ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है. सो आपको उस एल्टीट्यूड में जाके साइकिलिंग करना इज टोटली डिफरेंट. उसके लिए द प्राइमरी थिंग इज आप जितना जल्दी वहां पे जा सकते हो जाओ. मिनिमम 10 days आई सजेस्ट. अगर आप 12-15 दिन पहले जा सकते हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बिकॉज आफ्टर 8 days योर बॉडी स्टार्ट एक्लेमाइजिंग, और आपके बॉडी में वो हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ना स्टार्ट होगा जो वहां के एल्टीट्यूड में इंपॉर्टेंट है. और हिमालयन इज ऑल अबाउट क्लाइंबिंग. वहां पे आप स्पीड को ध्यान दे के नहीं चला सकते हो. मे बी कभी कभी आपको 7-8 kmph का स्पीड दिखेगा घंटों तक, क्योंकि इट हैज लॉन्ग क्लाइम्स. एक क्लाइंब है आई गेस इट्स कॉन्स्टेंटली अबाउट 90 किलोमीटर फ्रॉम कारगिल टू लमायूरू, कारगिल टू फटुला पास. सो आपको वहां पे क्लाइंबिंग इज मोर इम्पोर्टेंट. आपको काफी सारा क्लाइंबिंग ट्रेनिंग करना पड़ेगा उसके लिए. हिल रिपीट्स बहुत ज्यादा आएगा उसमें. आपको जोन 4 जोन 5 में इंटरवल्स करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप वहां पे जाने के बाद जोन 2 और जोन 3 में कंफर्टेबली चला सको. हिमालय में सबसे मेन थिंग है आप वहां पे ज्यादा पुश नहीं कर पाओगे और नहीं करना चाहिए. अगर आपने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया खुद के बॉडी को, इफ यू फील कि मेरे को स्पीड नहीं आ रहा बट आई राइड एट 32 kmph, आप लिटरली स्ट्रेचर पे वापस आओगे, बिकॉज आपको कंफर्ट जोन देख के ही चलाना है. आप कंफर्ट जोन के बाहर नहीं जा सकते वहां पे. सो अगर वहां पे वेरिएशन बहुत ज्यादा होंगे क्लाइमेटिक, तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा. आपको धूप में चलाने का ज्यादा आइडिया होना चाहिए, आपको ज्यादा ठंड में चलाने का आइडिया होना चाहिए. मे बी आप बहुत ज्यादा लकी हो तो आपको बारिश भी मिलेगी वहां पे. सो आपको ये सारे एक्सपीरियंसेस पहले ही माइंड में डालने चाहिए कि हाँ ये सारे क्लाइमेटिक चेंजेस होंगे. सो कुछ भी हो जाए हमको चलाना है. वहां पे जाके एक्सक्यूजेस नहीं बनाने कि मैंने कभी रेन में राइड नहीं किया तो अभी मैं कैसे चलाऊं. एंड ऑल्सो वहां पे सबसे मेन है कि आपको कंफर्ट देख के चलाना पड़ेगा. अगर आपका बॉडी बोल रहा है कि नहीं पुश हो पाएगा, नहीं चलाना है, आपको कुछ ज्यादा तकलीफ हो गई है, देन स्टॉप. बट हिमालयन में जाने के लिए आपको एल्टीट्यूड का जो ट्रेनिंग है वो आप वहीं पे जाके कर सकते हो. गो टू ले 15 और 10 days प्रायर. वहां पे जाके पहले वॉकिंग से स्टार्ट करो. फर्स्ट डे फुल रेस, देन वॉकिंग से स्टार्ट करो, देन गो फॉर 30 किलोमीटर का राइड और 40 किलोमीटर का राइड, विच विल बी हाफ क्लाइंबिंग. मतलब आप 40 किलोमीटर चलाने जाओगे उसमें ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर क्लाइंबिंग ही होगा वहां पे. सो आपको वो ट्राई करना पड़ेगा कि आप ग्रेजुअली उसका इंटेंसिटी बढ़ाओ. 60 to 70 किलोमीटर मैक्सिमम यू कैन राइड इन हिमालयन बिफोर द इवेंट, बिकॉज वहां पे रिकवरी टाइम भी काफी कम हो जाता है बिकॉज ऑफ लेस ऑक्सीजन. तो ज्यादा लॉन्ग राइड करके भी कुछ सेंस नहीं बनता है. 2-3 days बिफोर द इवेंट यू कैन गो फॉर 60 और 70 किलोमीटर का राइड, विच विल बी 35 किलोमीटर ऑलमोस्ट डाउन हिल ही होगा उसमें. देन 35 किलोमीटर विल बी क्लाइंबिंग. सो हिमालयन जाना है तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट. आपको बॉडी को प्रॉपरली जानना पड़ेगा. ऐसे नहीं कि आपने बहुत सारा खर्चा तो कर दिया हिमालयन करने के लिए, बट बॉडी आपको साथ नहीं देगी है तो क्या करे. हम लोग करेंगे नहीं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आपकी बॉडी मैक्सिमम कब कंफर्टेबल है, और आपको उसी के हिसाब से कॉल लेने पड़ेंगे. एंड डू लॉट्स ऑफ क्लाइंबिंग ट्रेनिंग. जिसका क्लाइंबिंग नहीं है स्ट्रॉन्ग, हिमालयन सोचो भी मत. अगर आपको हिमालयन सच में करना है और सबसे ज्यादा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस लेना है, तो हिमालयन से अच्छा गेस कोई भी नहीं है. बिकॉज यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ले. सो ट्राई करो कि जितना जल्दी प्लान कर सकते हो करो ले के लिए, बिकॉज एक अपॉर्चुनिटी है कि हमको इतने अच्छे टेरेन पे राइड करने मिल रहा है इंडिया में होके. हिमालयन के बारे में इंडियन से ज्यादा फॉरेनर ज्यादा क्रेजी है, बिकॉज उन लोगों को पता है कि हाई एल्टीट्यूड का क्या डिफरेंट ये होता है. सो उसके लिए ट्राई करो. अगर ये अपॉर्चुनिटी है तो उसका बेनिफिट भी लो.
खुद को प्रिपेयर करो उस हिसाब से, सारे रूल्स प्रॉपरली फॉलो करो जो एक्लेमाइजेशन के हैं, जो कि आपको बुक में मिलेंगे या पहले भी आ जाएंगे, और ट्राई करो कि जितना टाइट प्लान रख सकते हो खुद का ट्रेनिंग के लिए या वो एक्लेमाइजेशन के लिए, उतना अच्छा आपका राइड वहां पे खत्म हो। दिव्या। Yeah, great. Thanks, Kavi. That was a wonderful session. Everything. Yeah. And of course, just for everyone to know, we'll be doing separate sessions on each of the races. There'll be a separate session on the Himalayan before we go in there, which will be everything about the Himalayan. There'll be one on DC and later on for Ultra Spice also. Yeah, I'll open it up for questions, and just keep in mind that the questions have to be related to what we've just done. What Kabir has just talked about, yeah, that topic. I'm on my mobile, so मेरे को सबका raise किया हुआ hand नहीं दिखेगा. So you can take the question, I'll answer them. Okay. So let's start with Ravi Sharma. Can you? What was your question? Hi, Kabir. Hi, Ravi. My question is actually in two parts. Okay. Since you have talked about the climb of DC will be, we will be facing around 5,000 somewhat. Correct, 5,500. 5,500. Yeah. So according to you, what will be the best possible hard zone to be riding on it? What should be the speed we should be maintaining during the climbs, and what should be the cadence we should be maintaining so that we don't overburn our body during the climb? Correct. So it depends on person to person. If someone rides at 30 kmph, he will be riding climbs at 12 to 15 kmph. So, and it depends on your hard zones. So you have to take your hard zones. You can type it on Google, that heart rate zones. You can type your age, then it will show you your maximum heart rate, and उसके हिसाब से आपका zones दिखेगा. So I won't suggest you कि go beyond zone 4. So you have to ride at that zone 4 on the climbs. It's better to ride at zone 3 and zone 4, but don't push too hard on the climbs to ride at zone 3 and zone 5 or zone 6. So you have to prepare accordingly. Okay. To add one more question. Sorry. Yeah. No. Will you recommend climbing of Kasara Ghat or Boghat? Because I think the gradient wise, I think Kasara is more gradient than Boghat. Yeah. So you can do both the climbs. Boghat is more steeper, and I don't think that itna steep climb koi hai Deccan ke raste pe. So you can go for Kasara Rapids. It's a good climb, gradual hai. And if you can come to Boghat easily, then go for it, because it will be a bit tougher. So you can ride in Boghat also. In a day, if I train for around 4,000 meter elevation, means couple of loop, 3 loop, that will be sufficient, or we should be doing something more on that? No, for 4,000 meter, you have to do somewhere around 10 loops of Boghat. So you won't be doing 4,000 in 3 loops. So don't go too hard. You can do hill repeats, like 2-3 loops are more than enough. Then you can do it in the race day. मतलब आपको उतना mileage भी चाहिए, and again जैसे मैंने बोला कि आपको weekly 8 से 10 घंटे का training is more than enough. So you can split it out. आज मैं जाके loops करूंगा, I'll do 3 loops of Boghat or 2 loops of Kasara. That is more than enough. एक ही दिन में जाके 4,000 मीटर करने में कुछ सेंस नहीं बनेगा अभी के लिए. Okay, thank you. Okay. And you have nice bike collection, na? Yeah, thanks. Hi Kabir, Mahesh here. Hi. Yeah, Mahesh. You were talking about overall mileage, right? So Correct. I was just had a question that what is the kind of mileage we should be looking now? We are at 6 months before the race day. So what is the kind of mileage we should start putting in month on month, and what is it that we have to peak? Correct. So basically, more than mileage, okay, concentrate on hourly training. Okay. कभी कभी ऐसा होता है कि you go for a route which has more downhill. So आपका इतना ज़्यादा effort नहीं लगता है. Better to ride on a flatter route
when you are doing endurance ride. So you have to keep pedaling on that route. मतलब आपका legs is constantly engaged, or choose a rolling route, और आप hill repeats जब करते हो तब, so keep a target of 8 to 10 hours weekly. Okay, so that will be more than enough. When you ride for 8 to 10 hours weekly, that will be more than enough. Thanks, Kabir. Yeah. Hi, Kabir. Chetan. Yeah, Chaitanya. Hey, Kabir. So, you said कि shoulder pain है, back pain है, तो sort out करना चाहिए पहले ही. Correct. But in lot of longer rides, जैसे कि 400 और 600 के BR में, what I observed is the saddle sore is a tricky part. Sometimes it suddenly comes up. Okay, correct. उसके लिए पहले से कैसे plan करें? So saddle sores is a thing. आप हर एक अल्ट्रा साइक्लिस्ट को होगा ही होगा. जिनको नहीं होता है, they are super lucky. But you can delay the saddle sores. Okay, if you get saddle soreness in 400 kilometer, you can delay those saddle sores after maybe 600 kilometer or 800 kilometers. So आपको frequently shots change करना पड़ेगा. Like after 200 kilometer or maybe 150 kilometers, you should change your shots. You can clean the area with the wet tissues, or you can put a antiseptic powder on the entire area. You can use a good moisturizer or chamois cream to put it on the shots. And you can go off saddle frequently, like 5 minutes अगर आपने continuously बैठ के चला है तो go for off saddle for 10 to 20 seconds. So it will relieve your muscles and the blood circulation will be better. So आप उसको delay कर सकते हो, but you can't avoid. So I use Infinity saddle, so which is good. So usually I get saddle sores after 800 to 1000 kilometer, but after Infinity saddle, वो भी अभी person to person depend करेगा कि उनको suit कैसे होता है. So after Infinity saddle, I get saddle soreness around like 1800 to 2000 kilometer के बाद, but it's difficult to completely avoid it. तो ये शेफिंग की वजह से होता है या ये मतलब सिट बोन पे प्रेशर बनने की वजह से होता है हमेशा? ये सर अभी फ्रैक्शन की वजह से होता है. आप सैडल पे हो, कंटिन्यूअसली पेडल कर रहे हो, तो आपका बॉडी कंटिन्यूअसली मूव होता है. देन वो क्लोथ है एंड सैडल है, और सेकंड होता है गैसेस. सो मोस्ट ऑफ द पीपल so that's okay, but saddle sores अगर होता है तो उसके लिए मेडिकल अटेंशन भी लगता है. बट आई थिंक आप रैशेस के बारे में ही बोल रहे हो, बिकॉज सोरनेस इज सुपर पेनफुल. सो में आपको देखना पड़ेगा कि कितने कैसे इधर. Hi Kabir, just a quick question. What would you suggest about the training, indoor or outdoor, and how does it differ other than the headwinds? So if you do 5 days indoor training, then it will be good. If you have smart trainer, then you can train on the power meter, which will give you accurate results, accurate analysis, and you can train more harder. But for endurance ride, I'll suggest you to go outdoors, like 3-4 hours का जो ride होता है जब आपको power meter पे ध्यान नहीं देना होता है, then go outdoors, see the winds कैसे work कर रहे हैं and all, then outdoor. So आप अगर 5 दिन indoor training कर रहे हो, you can go outdoor 1 दिन के लिए, उतना भी more than enough है. So आप जितना ज्यादा power meter पे training करोगे, उतना ज्यादा आपको अच्छा results आएगा. Because just a little extension to this question, you had mentioned we need to train for 8 to 10 hours. So when I'm doing on a trainer, I can easily clock 25 to 28 kilometers per hour, and then I get kind of an exhausted. But when I'm outdoor, I can how much 89 to 25 to 28 kilometer in hour. I can clock in. Correct. Yeah. For my exhaustion level. So where I feel we are getting a little tired. And the similar hydration and nutrition when I go on the road,
it's almost 80 kilometers. I don't feel it. So is that something to do with the trainer, something to do with the trainer setup or body? No, it is because of we are indoors, so the environment is like controlled. आपके बाहर हमको ज़्यादा wind होता है, when we go तो हमको automatically आगे से wind लगता है, so हम इतना ज़्यादा sweat नहीं करते हैं. And riding indoor is you actually sweat a lot than outdoor. So वो anyways difficult जाएगा, but you will get good results. You're training indoor, that's why you can go easily 80-90 kilometer outdoors पे without getting tired. So it's all about indoor training. जितना आपने indoor किया है उतने आपको easy जाएगा outdoor पे. So that is because of it. So okay, thanks a lot. कोई उससे ज़्यादा issue Prachi? नहीं है. Okay? Yeah. Sorry, Prachi, would you like to ask? Yes. Hi, Kabir. Yes. Am I Hi, audible? ma'am. Do you Yeah, have you're any audible. comments on role of weight training for this kind of riding? Will it have an additive effect on riding, or it could be just a waste of time? No, it won't be a waste of time. If your upper body is strong, you will sustain longer without any difficulty. Say like cycling में shoulder भी involvement है. You can keep 2 sessions weekly for upper body, like say shoulder tricep and back biceps. Legs पे don't give so much pressure because anyways we are training our legs thoroughly. तो इतना ज्यादा ये करके सेंस नहीं बनता कि हम लेग एक्सरसाइजेस भी ज्यादा करें. You can do free squats and lunges, but you can of course go for upper body exercises. So though that can strengthen your muscles and shoulder pain and lower back pain, ऐसा issues नहीं होगा. Okay, thank you. Okay. Yeah. Hi, Kabir. Hi. I'm planning to race unsupported in the Himalayan. Okay. I'm thinking whether it is a good to have aero bars on the bike, or it will be mostly useless in the Himalayan setting. No, it will be most useful thing to have in Himalayan because people. So entire route is about climbing, okay, but because of aero bar, there is some flat section also in Himalayan, like first 60-70 kilometer, you can go at good speed. So because of aero bar, you will have a different hand position. So aero bar has those clip-ons. So while riding, while climbing, being in a same position is bit tiring and bit irritating on the shoulders as well as on the back. So you can change your hand position also. You can go aero sometimes if the route is flat. You can keep your hands on clip on and everything, but yeah, you should go for aero bars. Okay, thank you so much. Okay. Yeah. Bhushan. Hi, Bhushan. TT bikes. Sorry? TT bikes. Bikes. How many bikes? TT, time trial bike. TT bike. Yeah, of course, you can go for time trial bike, but you can't ride entire route on time trial bike. Time trial bikes are good for rolling and flat terrain. On climb, you should have a good road bike, which is lighter because TT bikes are heavier than road bikes. So you will be slower on the TT bike if you go for any climb. So it's better to get use of your TT bike on looks like Kabir's logged out. I'll just wait for him to join back. Yeah. Yeah, so it's better to ride the climbs on road bike and flatter sections and rolling on the TT bike. Okay, means we can keep 2 bikes. That is the advantage. Yeah, you can keep as many as bikes you want. Bhushan, which race are you planning? Deccan. Okay. Yeah.
Yeah, if you see some of the race videos and things, some of the racers have used TT bikes, but like Kabir said, you can't use it for the entire duration. So you can have another bike, different setup We for can even. help, right? Yeah. You can have 3 bikes also if you want. Yeah. There's a couple more hands raised. Chaitanya? I think I'm done. Oh, is it? Oh, sorry. Okay, I'll just. Okay. Yeah. Anyone else? Any questions? Hey Kabir, this is Chaitanya. I think मैं drop हो गया था call से. We are talking about saddle sores. Yeah. So I was mainly asking about the pressure that develops on your sit bones after Correct. constantly sitting. So Correct. उसके लिए कुछ you have done or it's bound to happen? So I already covered this. You can DM me after the session on WhatsApp. I'll tell you. Okay. Okay. Thanks. Okay. Hi, Kabir. Hi, Kabir. can you, hi. Dr. Inderjeet here. Okay. Ma'am, I have Hi, 3 sir. questions. Okay. Yeah. Question number 1 is, can you please tell more about neck pain? After Okay. we cross 100 kilometer and all, this neck keep on, some kind of pinching pain is there. Okay. Second question, and the second question is about road bike and MTB. Which section we can for DC we can use both, or we can use one. And third is about cleats. Have some light on cleats. Please. Okay. So you said back pain or neck pain? It's neck pain, neck. Sometimes we put on a neck like this. Correct. Neck So pain. the basic thing is your stem is longer, so you have to change your stem. So bikes are made because in standard year, so most of the stems are 100 mm longer, but Asian guys, we don't have long hands, so our reach gets longer. So because of that, most of 90% of the cyclists face pain in this region. So change your stem, put a 60 mm or 40 mm stem. That will make a big difference in your pain. If it again stays there, then you have to see some physio. So if I can just add to that, any of the issues that you face, you have to do a little bit groundwork to figure out what are the possible reasons that this could be happening, and then one by one try to eliminate. So bike fit is one of the things that can give you all kinds of issues, especially in long distance and endurance. So you can do what Kabir has suggested now, and then still do a little bit of and depending on how it goes with that, you can even look at getting a bike fit done somewhere. Yeah. Second question was, I guess, whether he can use both the bikes. Yes, you can use both the bikes, MTB and road, but it's better to use road bike because it will be more faster, more comfortable on this long terrain. If you see some bad patch, you can shift to your MTB, but keep your MTB as a spare bike and keep your road bike as a primary bike. Yeah. And the next question was about cleats. Yes, of course, cleats makes a good difference on climbs because you get both the movements, push and pull, because your legs are stuck. So if you can shift to cleats, it's good to have cleats, especially for the climbs. Flat पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, but on climbs, cleats are, yeah, of course, good to adopt. Yeah. Kabir, Sachin here. Hi, Just sir. one question. Yeah. Just tell me, what is the average output of power in watts you expect to comfortably finish this race in 32 hours? So it depends on your FTP. Is your FTP is 300 watts? So basically, it's kind of difficult to answer कि कितना watts लगेगा exactly.
अगर मैंने बोला कि 300 वॉट लगेगा, 300 वॉट मतलब अगर मैंने बोला कि 200 वॉट लगेगा, बट 200 विल बी फॉर 24 आवर. अगर आप उसमें ऑफ सैडल जाओगे देन द मैथ विल चेंज. अगर आप उसने कॉन्स्टेंटली चलाओगे देन द मैथ विल चेंज. सो कीप अ स्मॉल टारगेट, लाइक 6 घंटे में मेरे को इतना एरिया कवर करना है, देन नेक्स्ट 6 आवर्स में आई विल कवर दिस मच. इतना वॉटेज देख के आप नहीं चला पाओगे, बिकॉज योर एफटीपी गोइंग टू गो डाउन आफ्टर 10 आवर्स. सो आपको उतना मिलेगा भी नहीं वो पावर आउटपुट. सो बेटर है कि छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, 3 घंटा 6 घंटा, और मे बी ईच टाइम स्टेशन कि मैं ये नेक्स्ट टाइम स्टेशन में इतने टाइम में पहुंचूंगा, देन उसके बाद, एंड वो प्रॉपरली टैली करोगे, उससे आपको फर्क पड़ेगा. पावर आउटपुट का ज्यादा सेंस बनता है शॉर्टर डिस्टेंस में, लाइक 40 किलोमीटर का टाइम ट्रायल है या 100 किलोमीटर का रेस है. बट डेक्कन में नहीं, रास्ते का कंडीशन है, हेडविंड आएगा, टेलविंड आएगा, इट इज टू डिफिकल्ट टू टेल. Thank you. Yeah. Okay. Hi, Karan. This is Pankaj here. What is the average speed you think one has to be at? For one is for Deccan Cliffhanger and the second for the Himalayan rally. So for Deccan Cliffhanger, you have to be somewhere around 19 to 20 kmph Average. Yeah, but पहले ही आप इतने कम स्पीड में चलाओगे तो it won't work. You have to be faster, then बाद में जाके this is gonna go down. So आपको वो एक बेस एवरेज पकड़ना पड़ेगा और उसके साथ ही चलाना पड़ेगा. Multiply the given time with the distance, you will get the minimum average speed you need to maintain. So, you know, like you go back to the presentation that I gave about, which talks to you about doing your math. So that's, it empowers you to apply this to any race, to your own abilities, to your average. So you need to observe what you are doing and then do that maths and work backwards from there, you know. And it's all very basic math. It's nothing rocket science. इतना distance है, इतने घंटे में cover करना है, इतने घंटे में मैं project कर रहा हूँ, तो इतना average उसमें से वो पूरा, actually if you remember that screen share of that presentation, it's all worked out there. So I have seen it, but I just want to kind of a certain like when you are training, what should be my average speed? You know, when I'm training. Yeah. So if you are doing 30 kilometers per hour or 27 kilometers per hour, then maybe, you know, you will sustain around 22 or 23 average. So what is it that I should target, you know, while I'm training for Deccan Cliffhanger? So what is your maximum ride, which you have around 500 kilometers? And the time taken? It's average of 20. 20. So that is your best till date. Okay. So you have to give some thought ki if you have done 500 kilometers in 30 hours, so उसी हिसाब से आपको ये करना पड़ेगा. But actually mathematically 500 kilometers in 30 hours goes beyond 20 kmph, below 20 kmph. So आपको देखना पड़ेगा कि वो किस हिसाब से आपने 20 kmph उसको कंसीडर किया है, whether moving time के हिसाब से या स्ट्रावा पे दिखाया था उस हिसाब से. So आपको देखना पड़ेगा कि आपका अब तक का बेस्ट कितना है, और जब आप सिमुलेशन राइड करोगे then उसके बाद you can keep some good target कि हाँ I have done 600 kilometers in 30 hours. What So I can what I'm looking for, Kabir, is जैसे मैं अभी practice करता हूँ, तो considering it's a 2-hour continuous ride without maybe 5 minutes halt something, what should be my average speed in on those rides? That is up to you. मतलब ज़्यादा hard भी नहीं जाना है आपको. What I said कि जो week में एक दिन होता है endurance ride, when we don't look at speed and all, we just sit on the saddle and we ride comfortably. So तब जो आपका speed आता है, that is your comfortable pace. So उससे आपको थोड़ा सा hard जाना when you go for DC and all. Yeah. I was still not got my answer. What I'm looking, since I would be kind of first time. You can Sorry, Kabir, we've lost you. Hello. Maybe if you can switch your video off, then we'll be able to hear you better. Thanks. He can actually message me after the seminar, maybe tomorrow,
maybe I can assist him properly, because Sure. the Sure. explanation will be lengthy. So yeah, you can text me. Yeah, sure. Thank you. Okay. That was a wonderful, insightful session. Thanks so much, Kabir. Thank you, Deva ma'am. Yeah, even for me, it was there was a lot of things that you were inputting, and I was really happy that you were doing that and sharing it with everybody also. So thanks a lot, Kabir. Thank you for everything, for all your learning, for having been a part of this community, and for sharing it so insightfully with everyone. Thanks for having me. Thank you. So quickly, I had planned on doing a segment on a team strategy, how to do it, but we're out of time. It's 2:15, and I think there's been a fair amount of stuff to already absorb in this session. So I'll just figure out how we can either incorporate it in the next session or the session after that. And I'll get back to you with the details on that. I'll try to send some material to the ones who are planning team. I'll send it to the entire group so that you can start thinking about it, and then we'll do a discussion on that. Yeah, sounds good. Okay, so I'm just going to quickly look at the chat and see if there's anything that's missed out. Okay. Hey, you had mentioned about the Himalayan movie, right? Where is it available? It's on the YouTube channel. Okay. I'll share a link again in the group if you want. And in fact, if you all can subscribe to the YouTube channel, I've recorded today's session, so I'll be uploading this also for those who missed it. And there's a whole lot of other stuff on our YouTube channel as well. I'll send the link on the WhatsApp group shortly. Yeah. Okay, everybody. Good night. Thank you very much. It was a great session. Thank you. Thank you for a brilliant session and all the talk. Thank you. Good night. Thank you so much, ma'am. Thank you. Bye. Thank you, Kabir. Good night. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thanks, Divya.